So we have studied about the quantum numbers. Okay, so what is the first quantum number? It is the principal quantum number. Okay, it is the principal quantum number we have studied. Okay, so first is about the principal quantum number. Second quantum number कौन सा है? Yes, what is the second quantum number? Yes, azimuthal quantum number. Okay, so azimuthal quantum number. Okay, azimuthal quantum number. Then the third quantum number is, yes, magnetic. Okay, yes, magnetic orbital बोलते हैं उसको. So magnetic. Okay, magnetic orbital quantum number. And the fourth one. Okay, and the fourth one is, yes, electron spin quantum number. Electron spin quantum number. So out of this, first three is applicable to orbit, and all these four are applicable to the electrons. Okay. So principal quantum number, which is represented by N, azimuthal quantum number, which is represented by L, then magnetic orbital, which is represented by M subscript L, and the spin quantum number, which is represented by M. Yes. Okay. So spin quantum number. So till now we have studied about these quantum numbers. So what is the significance of principal quantum number? क्या देता है first principal quantum number? This first principal quantum number tells about the shell. Okay, this tells about the shell. Okay, which is the shell? And ये जो value है n की, ये क्या रहती है? That starts from 1. Okay, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, and so on. In this way, this value of n is applicable. Okay, so you have already studied what is the principal quantum number, what is the significance of this principal quantum number. Okay, what it indicates. The next is azimuthal quantum number. What this gives us? It indicates subshell. Okay, it indicates subshell indicate करता है ये. Okay, उसकी जो वैल्यू है यल की, वो कैसे, कहां से शुरू होती है? यल की वैल्यू 0 से रहती है. 0 1 2 3 so and so on. Okay, ऐसे रहती है वैल्यू. Okay, यल की वैल्यू. But how to calculate this? Okay, यल is equals to 0 and यल वैल्यू. Okay, यल वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ यल, द वैल्यू ऑफ यल स्टार्ट्स. ओके, वैल्यू ऑफ यल स्टार्ट्स फ्रॉम 0. बराबर है ना? वैल्यू ऑफ दिस यल की जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है. वो एंड वैल्यू क्या होती है? एंड्स एट, यस, एंड्स एट n माइनस 1. ये याद रखो सब लोग. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, n माइनस 1. तो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ यल. ओके, डिपेंड ऑन द सबशेल हम लोग देखने वाले, पूरा टैबुलेट करके देखेंगे हम लोग. ओके, तो इसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं, देन वी विल वंस अगेन look into the tabular form. So this is about the value of यल. Okay, starts from 0, यानी ये जो रहेगा फर्स्ट शेल के लिए वो क्या रहेगा? 0 रहेगा. Okay, so and it gives us the subshell, and these subshells are indicated by, yes, subshells are indicated by, yes, सबशेल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? यस, पी, डी और एफ से इंडिकेट करते हैं. ओके, तो आज हम लोग देखेंगे, टुडे विल वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दिस एस, पी, डी, एफ इट इज टू बी indicated. Okay, based on their principal quantum number. Okay, that also we are going to study. Okay, through the tabular form से देखेंगे हम लोग. So this is about the first two principal quantum number, principal quantum number, and this is azimuthal quantum number. Okay, समझ में आया सब लोगों को? Then the magnetic orbital. Okay, the magnetic orbital quantum number. So the magnetic orbital quantum number, this will give information about the relative spatial orientation. ये क्या देता है? Okay, orientation. It gives us the orientation, relative spatial orientation. Okay, what it does? It gives the relative spatial orientation. Okay, it gives the relative spatial orientation. So magnetic orbital and orientation of the orbital given subshell. Okay, subshell जो हमने define किया है with help of azimuthal quantum number, तो उनमें वो orientation देता है. Okay, what is that orientation? We'll understand clearly with help of the tabular. Okay, आज से देखेंगे हम लोग. Then the for any subshell the value, okay, or is calculated by just twice L plus 1 से हम लोग calculate करते हैं. Okay, and the value of MS. Okay, the value of ML जो magnetic orbital quantum number है ML, that value वो जो है that minus L minus 1.
ओके लाइक दिस एंड सो ऑन। ओके माइनस L माइनस 2, ऐसे आपको लेना है, बीच में आएगा 0, बीच में आने के बाद 0 आने के बाद यस फिर से उसको आप एक्सपांड कर सकते हो। ओके देन इट विल बी पॉजिटिव में आएगा, वो यल आएगा, देन यल माइनस 2 आएगा, देन यल माइनस 1 आएगा। ओके एंड फाइनली इट विल कम एज अ यल। So ये pattern है, okay, this is the pattern of EML. Okay, how that pattern, that also we are going to study. Okay, so ML is a magnetic orbital quantum number which will give the orientation, and this ML is equals to, हम लोग ऐसे उसको सीरीज में फाइंड आउट कर सकते हैं, बीच में उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, कैसे वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके so this is about these 3 quantum numbers we have already studied. Okay, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। Okay, then the electron spin quantum number. Okay, the next is electron spin quantum number. So electron spin quantum number, which is indicated by ms. Now what this gives us, the specific, it specifies the spin state of electron. Okay, ये क्या करता है, spin state of electron, spin state of electron, it gives us spin state of the electron, and the electron spin around its axis, this imparts spin angular momentum. Now this electron, when it is revolving around its nucleus, it will have some angular momentum. Okay, it will have some angular momentum. Okay, क्या होता है angular momentum, already define किया हुआ है हम लोगों ने। Okay, so angular momentum, and with that angular momentum it is rotated. Okay, then the two orientations which the spin angular momentum of an electron can take up. Okay, so इसके two orientation हो सकते हैं। Okay, and can take up, give rise to spin state which can be distinguished from each other by spin quantum numbers. So either, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला two orientations. Okay, what are that? Two orientations are possible here. Okay, two orientations, or we can say two spin. Okay, two spin states are possible. Okay, two spin states are possible. And what are that two spin states? Okay, so one is represented by plus 1 by 2, and another is represented by minus 1 by 2. Now what is the meaning of this? Okay, that also you will understand by the next principle जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में। Okay, so for now just understand that एक इलेक्ट्रॉन यानी they will have the opposite spin, they will have opposite spin to balance each other, बराबर है ना, to balance each other. तो जनरल आपको एक कंसेप्ट पता होगा। ओके, किसी भी चीज को बैलेंस रखने के लिए, ओके, सो इफ यू हैव टू बैलेंस द वेट, क्या करना पड़ता है, दोनों में इक्वल बैलेंस रखना पड़ता है। ओके, सो सपोज इफ आई एम गिविंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड इट हैज टू बी बैलेंस, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी जगह से फोर्स देना पड़ेगा। इन द सेम वे दीज आर द स्पिन्स। ओके, ये स्पिन है, एक प्लस है और एक माइनस में है। ओके, दैट आल्सो यू विल अंडरस्टैंड। सो द टू स्पिन स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एरोस। ओके, और उसको टू एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज पॉइंटिंग अप, ओके, दिस इज पॉइंटिंग अप, एंड वन अनदर इज पॉइंटिंग डाउन। ओके, सो दे विल हैव द अपोजिट स्पिन। आप देख सकते हो एक का जो स्पिन रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक का जो स्पिन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। Okay, this is the representation. So in this chapter only we have to study about this principle called as the Pauli exclusion principle. उसमें हम लोग ये देखने वाले about this spin we are going to understand. Okay, so but now very important is what, an orbital, it can accommodate, okay, so an orbital can accommodate maximum 2 electrons. Okay, what is that? एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? Yes, one orbit. We have already defined these are the shells with the help of principal quantum number. Then with the help of azimuthal quantum number, it is once again categorized into its subshells. Okay, and the total number of orbits we can calculate. कैसे निकालते हैं हम लोग total number of orbits? Yes, how we can calculate the total number of orbits? Yes, who will tell answer? Total number of orbits कैसे निकालते हैं हम लोग? Yes, in that particular shell कैसे निकालते हैं? Am I audible to all of you?
यस, कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन दैट पर्टिकुलर शेल में कैसे निकालते हैं? क्या है फॉर्मूला? करेक्ट है क्या? व्हाट इज दैट? एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर से क्या निकालते हैं हम लोग? एन स्क्वेयर से क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकालते हैं। टोटल हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। ओके, तो एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। टोटल एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, so for n is equals to 1, for n is equals to 1 कितना आता है? Only one shell is present. Okay, there is only one orbit is present when n is equals to 1. Okay, so when n is equals to 2, when n is equals to 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। how many orbits will be present? Total 4 orbits will be present. समझ में है ना? ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो 12th स्टैंडर्ड में वगैरह होंगे स्टूडेंट्स, उनको भी क्लियर होता नहीं कभी कभी ये कंसेप्ट। ओके, that's why I'm taking this concept very slowly so that everyone must understand. So total number of orbits हमें पता है। Okay, so very important right now, an orbital can accommodate maximum 2 electrons and they must have opposite spin. Okay, one orbit one orbit one orbit will have 2 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एक ऑर्बिट में? एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 electrons will be there in our orbit. And what about their spin? What about their spin? They will have opposite spin. They will have, okay, opposite spins. Okay, उनका जो spin होगा क्या होगा? Opposite रहेगा। Opposite means what? एक का अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दैट इज द रीजन इज, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो दोनों की जो एनर्जी है एक में को रिपेल करके रखती है, और इसी के कारण वो बैलेंस में रहता है। उसी के कारण वो क्या रहता है? बैलेंस में रहता है। एंड दे आर हैविंग opposite spin, they are having opposite spin, and that's why they are revolving with certain amount of energy, a fixed amount of energy, and they are revolving. Okay, and based on the energy of excitation, okay, they will jump from lower energy level to higher energy level and from higher energy level to low energy level. Okay, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस कंसेप्ट, ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, तो आपको समझ में आएगा फिर। सो वन ऑर्बिट, एक एवरी ऑर्बिट विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल हैव अपोजिट स्पिन। उनका जो स्पिन होगा वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा स्पिन। ओके, एंड this is known as the Pauli exclusion principle. This is known as the Pauli exclusion principle. Okay, this is known as Pauli exclusion principle बोला जाता है इसको। Okay, this was given by the scientist Pauli. So Pauli exclusion principle, and that we are going to study in a further section. Okay, so I hope you have understood this. Okay, what are the different quantum numbers and their description, what they tells about. Okay, so now we are going to draw one chart over in which we are going to understand about the very first four shell. फर्स्ट फोर शेल में ये सारे पैरामीटर्स जो हम लोगों ने अभी बोला वो हम लोग लिखेंगे। चलो वन बाय वन देखेंगे। ओके, व्हाट इज दैट? सो मोर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस राइट नाउ। सो वन बाय वन। So each orbit is having only 2 number of electron. Okay, and that they will have their opposite spin. They will have opposite spin. दोनों वो जो spin रहेगा, okay. So they will have spin state जो रहेगा उनका दोनों का क्या रहेगा? Opposite रहेगा. So this is known as a Pauli exclusion principle. We have to represent this. Okay, we have to understand this Pauli exclusion principle. हम लोग आगे इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। So now let us understand the orbital distribution in the first four shells. Okay, orbital distribution. Okay, all orbital distribution. Okay, orbit wise distribution देखेंगे हम लोग। Orbital distribution in first four shell. In first four shell. First four shell. Okay, that is KLMN. Okay. So in this first four shells, that is KLMN, we are going to understand their orbital distribution. Okay, orbit में distribution कैसे हो रहा है वो देखेंगे।
So all of you, the board is clearly visible. Board clearly visible है? Okay, so now one by one we are going to write down. Okay, first is a symbol. Okay, first is about the symbol. Okay, symbol, symbol किसका? शेल का symbol. Okay, शेल का symbol. शेल का symbol क्या है? Very first symbol of the shell. Yes, first symbol of the shell is what? K. K. Okay, K shell. So K shell में you tell me one by one value of principal quantum number. Okay, what is the value? Value of principal quantum number. Okay, value of principal quantum number. Yes, क्या है? Quantum number. That is n. n से represent करूँ. n is equals to 1. Okay, so this is the value of principal quantum number. Okay, so now the number of subshells. Okay, number of subshells क्या है उसमें? चलो एक बार एक काम करता हूँ, उसके नीचे भी मैं क्या लिख देता हूँ? ऑर्बिट्स लिख देता हूँ. ओके, टोटल ऑर्बिट्स लिख देता हूँ. ऑर्बिट्स. So I will write here total orbits. Okay, for your understanding, total orbits. Total orbits, that is n square. कितना आ जाएगा? 1 square is equals to 1. कितने ऑर्बिट है टोटल? टोटल 1 ऑर्बिट. ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टोटल ऑर्बिट्स, so that is equals to 1. Now next is number of subshells. Number of subshells. How many number of subshells will be present? Yes, कितने? 1 रहता है, बराबर है. So that is equals to number of subshells is nothing but that is equals to n. Okay, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. That is equals to n और n कितना है? 1 ही है. Okay, so this is the number of subshells. Okay, this is the value of the subshells. Now the value of azimuthal quantum number. Okay, the value of azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Yes, क्या है azimuthal quantum number? Azimuthal quantum number which is represented by L. Okay, which is represented by L. So which gives us the number of subshells. Okay, तो देखो इसमें क्या आएगा? L की वैल्यू. Okay, L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो यहाँ पे मैं साइड में 0 से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? L की वैल्यू इट एंड एट n माइनस 1. तो n क्या है यहाँ पे? 1 माइनस 1 है, यानी वो 0 पे ही खत्म हो जाएगी. समझ में आया सब लोगों को? L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड इट विल एंड एट 0 ओनली. कैसे आया? तो ओनली L वैल्यू विल ओनली कम एट 0. समझ में आया ना सब लोगों को? L की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी, L की वैल्यू 1 नहीं आएगी इसमें. In this way. Now this is about the azimuthal quantum number. Now this azimuthal quantum number tells us about what? क्या बताता है azimuthal quantum number? It gives us the subshell very first, बराबर है ना? It gives us the subshell. And what is the representation of that subshell? Can you tell me? क्या है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सबशेल को? एस पी डी एफ. ओके, एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और सैटरडे को हम लोगों ने देखा when L is equals to 0, which subshell we take? कौन सी सबशेल लेते हैं हम लोग? बोलो. यस, यस लेते हैं. वेरी गुड. क्या लेते हैं हम लोग? सबशेल. यस. सो सबशेल, सो सिंबल ऑफ सबशेल, सिंबल ऑफ सबशेल. सबशेल का जो सिंबल है वो हम लोग लिखेंगे. तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग? यस से लिखते हैं. वेरी गुड, बराबर है ना? यस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं when L is equals to 0. But right now we cannot represent by yes only. Okay, क्योंकि देखो ये yes L is equals to 0 के शेल में भी आएगा, बाकी वाले जो सीरीज में उसमें भी आएगा, बाकी वाले शेल में. तो इसको स्पेसिफिकली हम लोग और मोर क्लैरिफाई कर देते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ दैट सबशेल, in front of that subshell the value of principal quantum number is written. Okay, कैसे लिखा जाता है? Okay, yes जो है, yes is what? subshell. बट इसके आगे जो लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या लिखते हैं हम लोग उसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं. ओके, सो मे नॉट दिस प्रॉपर्ली गिवन इन अ बुक. ओके, याद रखो ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? किसको n से रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? n से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस शेल? n की वैल्यू क्या है? 1. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 yes लिखेंगे. समझ में आया सब लोगों को?
क्या लिखेंगे अभी टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली? 1s, समझ में आया सब लोगों को? So we have to write it 1s. Why we are writing 1s? Because we have to write principal quantum number in front of that representation of subshell. Okay, 1s लिख दिया हम लोगों ने. Okay, so this is what the rule actually. Okay, ns होता है actually. Okay, so which is not mentioned in your book actually. So now this is the symbol of subshell. Okay, symbol of subshell लिख दिया हम लोगों ने. Now the next important is the total number of orbitals in the subshell. Okay, अभी क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो subshell है उसमें कितने ऑर्बिट्स थे, बराबर है ना? इसमें कितने ऑर्बिट्स थे? That is what the total number of orbitals in the subshell. So total number of orbital in subshell. और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों ने कल फॉर्मूला देख लिया है. ओके, दैट इज ट्वाइस यल प्लस वन, बराबर है? फॉर्मूला लिखा हुआ है हम लोगों ने ट्वाइस यल प्लस वन. ओके, सो व्हाट दिस गिव्स अस? दी शेल में क्या है? सबशेल से, एंड उस सबशेल में कितने ऑर्बिट्स है? ओके, कितने ऑर्बिट्स है? दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. चलो इसको प्रॉपर्ली हम लोग प्लॉट करेंगे इसको. सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो कैसे निकालेंगे? ट्वाइस यल प्लस वन. कितनी है वैल्यू यल की फर्स्ट केस में? बताओ. यस, 2 मल्टीप्लाई बाय यल की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस 1. कितना आंसर आया? आंसर कितना आया? 1 आया. समझ में आया सब लोगों को? सो आंसर इज 1. सो इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू फॉर दिस शेल इज 1 ओनली. उसका मीनिंग है उसमें क्या है? वो जो शेल है उसमें जो सबशेल्स है वो एक्चुअली 0 ही है. उसमें कुछ सबशेल है नहीं, वो शेल ही है. और उसमें जो ऑर्बिट है वो एक ही ऑर्बिट है. ओके, इन दैट शेल. Now the last is the value of magnetic quantum number. Okay, value of magnetic, the third quantum number, that is value of magnetic quantum number. Okay, value of magnetic quantum number. Value of magnetic quantum number. Okay, so value of magnetic quantum number, and which is represented by okay ml. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको? ml से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये ml किसके लिए होता है? दिस इज फॉर द सबशेल. किसके लिए होता है ये? फॉर द सबशेल होता है. ये सबशेल के लिए होता है. ओके, फॉर द सबशेल. एंड ml इज इक्वल टू, यस, ml इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला लिखा था. ओके, ml का फॉर्मूला लिखा था. ओके, फिर से एक बार लिखता हूं मैं. ml इज इक्वल टू ml जो है वो शुरू किससे होगा? माइनस, यस, माइनस यल से शुरू होता है. ओके, माइनस यल से शुरू होता है. एंड यस, माइनस यल से शुरू होता है. और माइनस यल माइनस वन, फॉर्मूला लिखते हैं उसका. माइनस यल माइनस वन, देन माइनस यल माइनस टू, एंड सो ऑन. माइनस यल माइनस टू एंड सो ऑन. ओके, बीच में 0 आता है. ओके, एंड देन यल माइनस टू, देन यल माइनस टू आ गया, देन यल माइनस वन आएगा. ओके, देन यल माइनस वन, एंड फाइनली लास्ट में यल आता है. देखो, तो देखो इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं? यस, माइनस यल क्या आएगा इसके लिए? माइनस यल विल बी व्हाट? माइनस यल विल बी, यस, माइनस यल विल बी माइनस 0, बराबर है? माइनस 0 आएगा. और that is minus L minus 1. तो in this way, so we have to select here only 0. Okay, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी वैल्यू 0 ही लिखेंगे. इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे. So more about this value of magnetic quantum number, ये आपको आगे वाले सीरीज में समझ में आएगा. Okay, so ml is equals to कितना आया? 0 आया. समझ में आया सब लोगों को कैसे आया? तो okay, so now for second shell. Okay, now for the second shell we are going to write. Okay, second shell के लिए लिखेंगे. चलो second shell के लिए लिखते हैं हम लोग इसको. Which one is the second shell? L. Okay, L shell के लिए. चलो one by one. What is the value of n? N is equals to 2. Okay, n is equals to 2.
व्हाट इज n स्क्वायर? n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बराबर है ना? n स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल ऑर्बिट्स, बराबर है ना? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें? 4 है। नाउ नंबर ऑफ सबशेल्स दैट इज इक्वल टू n, n कितना हो जाएगा? यस 2, बराबर है। ये चाहे तो कंफ्यूजन अगर हो रहा है इसमें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्बिटल्स, ओके ऑर्बिटल्स टोटल ऑर्बिटल्स दैट इज n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, ओके 2। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या रहता है? यस एजिमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके कहां से स्टार्ट होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर? यल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो देखो यल इज इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे 0 ही रहेगा, और एंड कहां पे होता है वो? n माइनस 1। व्हाट इज n माइनस 1 हियर? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1। तो यानी यल 0 से स्टार्ट होगा और यल जाके खत्म कहां पे होगा? यल इज इक्वल टू 1 पे जाके खत्म हो जाएगा, बराबर है? यल इज इक्वल टू 1 पे जाके वो खत्म हो जाएगा, यल इज इक्वल टू 1 पे जाके वो खत्म हो जाएगा। चलो नाउ सिंबल्स ऑफ सबशेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल ऑफ सबशेल व्हेन यल इज इक्वल टू 0, यस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सबशेल को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से 1 नहीं लिख सकते आगे, क्योंकि उसका रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या करना पड़ता है हमें? उसके आगे n ऐड करना पड़ता है, n आगे रखना पड़ता है, ओके एज अ प्रीफिक्स, ओके। तो n क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है n? 2। तो कैसे लिखेंगे उसको? ट्वाइस s, समझ में? सो सिंबल ऑफ दिस सबशेल विल बी 2s, ओके। कैसे रीड करते हैं इसको? 2s बोलते हैं, ओके। सो 2s। नाउ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यस टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे इसमें? 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यानी इसका मीनिंग है जो यल शेल है, यल शेल में जो फर्स्ट वाली जो सबशेल है, फर्स्ट वाली सबशेल का रिप्रेजेंटेशन 2s है, और उसमें जो टोटल ऑर्बिट है वो कितना है? ओनली 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट, in only one orbit is present in that subshell, which is represented by s, okay. So this is the way we have to represent. Now the next is value of magnetic quantum number, okay value of magnetic quantum number, yes क्या आएगा इसके लिए? value of quantum number, the value of quantum number that is ml will be equals to 0, okay ml will be equals to 0 for s subshell के लिए ml की वैल्यू डायरेक्टली 0 आती है, okay 0 आती है। समझ में आया सब लोगों को? Okay, so this is what the values, okay this is what the values for when L is equals to 0, उसको properly classify कर लेते हैं। when value of L is equals to 0, बराबर है? value of L is equals to 0 है, that time this is the representation. now when value of L is equals to 1, किस शेल में? सेम यल शेल में, ओके। सो नाउ यस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? when L is equals to 1 which is represented by P, but उसके आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है 2 is the principal quantum number, 2 is the principal quantum number, तो 2 आ जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग उसको? 2p से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, total number of orbitals in the subshell. So for this, okay, we will have to write here 2 multiply by how many? L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 वैल्यू है 1, ओके प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3। इसका मीनिंग क्या है? ये जो सबशेल जो है 2p नाम का जो सबशेल है, उस सबशेल में भी कितने और ऑर्बिट्स है? 3 ऑर्बिट्स है। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक ऑर्बिट है, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके दिस 2 yes, then here also the value of subshell, the value of orbital is 1, तो एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे देखो 2p में कितने ऑर्बिटल है? 2p के 3 ऑर्बिट से, बराबर है? 2p के 3 ऑर्बिट से, यानी 2p is the subshell, and in that subshell also there are total how many orbits? 3 orbits. Now you tell me कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। समझ में आया सब लोगों को? 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर।
ये क्यों बता रहा हूँ मैं आगे, बिकॉज आगे जाके कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को कि ये डायरेक्टली 2p6 कैसे ले लिया। ओके, बिकॉज मे नॉट बी मेंशन। ओके, क्योंकि क्लियरली बुक में नहीं लिखा हुआ है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड number of orbits if there are 3 orbits. If there are 3 orbits, one orbit consists 2 electron, 3 orbits will consist total 6 electron. इसका मीनिंग ये है कि ये सबशेल में 2p वाले सबशेल में टोटल how many electrons will be occupied? Total 6 electrons will be occupied in this p subshell. P subshell. Okay, so now we have to write down the values. Okay, values of magnetic quantum number. Values of magnetic quantum number. तो देखो वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए क्या करना है, कितने ऑर्बिट्स है यहाँ पे, 3 ऑर्बिट्स है। तो देखो एम ई एल एंड एम एल एंड एम एल। ओके, बेटर वे आई विल राइट हियर। ओके, एम एल की जो वैल्यू है, तो एक बार एम एल की जो वैल्यू है वो किस में आएगा, ये आएगा माइनस में आएगा। ओके, माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार जीरो में आएगा। तो एम एल इज इक्वल टू -1 आएगा, देन एम एल इज इक्वल टू 0 आएगा और एम एल इज इक्वल टू +1 आएगा, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला व्हाट वी हैव रिटन, जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, उसके हिसाब से। तो देखो एक बार फॉर्मूला एक बार फिर से बताता हूं मैं। एम एल इज इक्वल टू लिखा है हमने -1 बराबर है, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, एंड सो ऑन 0 आएगा बीच में। ओके, उसके बाद में L-2। ओके, सो L-1 और फाइनली L आता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो देखो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, -L यानी -1। ओके, -1 0 ही आ जाएगा। ओके, एंड L-2। ओके, L-2, L-1 और L, in this way the value will be yes plus -1 0 and +1 in this way, in this pattern. ओके, कैसे याद रखना है उसको, ये देखो 3 ऑर्बिटल से 3 ऑर्बिटल से तो 3 ही इसके आंसर्स आएंगे। इसके आंसर क्या आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे। ओके, इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर। ओके, so this is for the L shell, this is for the L shell. Now M shell के लिए, okay, this is for L shell. Now M shell, now M shell के लिए। ओके, सो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिखना पड़ेगा हमें। ओके, ये मिटा देता हूं मैं अभी, यहाँ पे पूरा आना चाहिए यहाँ पे, n² इज इक्वल टू 4। तो चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग। सो म्यूट कर लो वॉइस। देन KL, नेक्स्ट इज M। ओके, नेक्स्ट शेल इज M शेल। Look at what is the value of principal quantum number for M, that is n is equals to 3 and n square is equals to yes 3 का square that is 9 बराबर है, n square is equals to 9। number of subshells is nothing but that is equals to n, यानी 3 हो गए। now here when L is equals to 0, when L is equals to क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, 3 सबशेल से L is equals to 0 रहेगा, L is equals to 1 रहेगा और L is equals to 2 रहेगा। वन बाय वन लिखेंगे हम लोग। when L is equals to 0, symbol of the subshell क्या आएगा, symbol of the subshell yes, but right now in front of that the principal quantum number that is 3 yes, very good। then next 2 multiply by 0 plus 1 is equals to 1। yes, इसमें आप लोग देखोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि यस शेल के लिए जो ऑर्बिटल्स थे वो 1 ही आएंगे सबके लिए। आप चेक करो, बराबर ना, 1 ही आएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ ML will be equals to 0 only, value of ML will be equals to 0 only when for yes subshell। okay, in this way you have to understand, now when L is equals to 1, when L is equals to 1 देखो यहाँ पे L is equals to क्या आएगा, L is equals to 0 1 and 2 आएगा। चलो नेक्स्ट, when L is equals to 1 हम लोग उसको p ऑर्बिटल से इंडिकेट करते हैं, but right now principal quantum number is 3, so that's why 3p। okay, that's why 3p and 2 multiply by yes 2 multiply by L कितना है, 1 है, plus 1 is equals to yes 3। समझ में? so L की वैल्यू 1 है तो 2L plus 1 3। तो इसका मीनिंग है P में कितने आते हैं टोटल, हमें पता है ऑलरेडी। P के लिए ये कॉमन है, P के लिए कितने आएंगे हमेशा ऑर्बिटल्स, 3 ही ऑर्बिटल्स आएंगे और 3 ऑर्बिटल्स विल कंसिस्ट टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स
सो एम एल इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आएगा, एम एल इज इक्वल टू 0 आएगा और एम एल इज इक्वल टू +1 आएगा फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. समझ में आया सब लोगों को? ओके. बट हियर L is also equals to 2. L is also equals to 2. In this case, L is also equals to 2. चलो, L is equals to, इसमें 2 भी होता है because total 3 subshells are present. Yes, P. Now D. बराबर है? D orbit. Okay, D orbit. इसके आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर that is 3D. Okay, so you आप देख सकते हो कोई भी सेम नहीं है. Okay, अलग अलग नॉमेनक्लेचर उनकी. So now in this way, 2 multiply by 2 plus 1, that is 2 to the 4. 4 plus 1 that is 5. Okay, 4 plus 1 that is 5. इसका मीनिंग ये है that the subshell will have total 5 orbits. बराबर है ना? The subshell is having total 5 orbits. Each orbit is having 2 electrons. Then how many total number of electrons will be occupied in a D subshell? 10. बराबर है ना? 5 multiplied by 2, that is total 10 number of electrons are occupied in a D shell. So D जब भी आएगा shell उसमें 10 ही आएगा maximum electrons. Okay. So now here value of ML will be, yes, ML will be, एक जो है ये आ जाएगा -2, एक जो है -1, दूसरा जो है ML 0 आ जाएगा. Okay. Then ML is equals to 1 आएगा और ML is equals to, yes, ये 2 आ जाएगा, मीन्स +1 and +2. In this way it will come. समझ में आया? So values of magnetic quantum numbers for the subshell will be 5 values. 5 values आएगा, एक का -2, एक का -1, एक का 0, एक का +1 and एक का +2. Because total 5 orbitals are present, 5 values आएंगे बस. Okay. In this way you have to remember. And now last. Okay. Now the very last. So yes. Yes. So now very last shell KL N and now N shell में. Yes. What is the value of principal quantum number? N is equals to 4. N is equals to 4. Total orbits. Total orbits is 4 square, that is 16 orbits. Total कितने orbits रहेंगे? 16 orbits रहेंगे. Number of subshell will be 4. 4 subshell रहेंगे. Okay, 4 subshell रहेंगे. और ये देखो when L is equals to 0, हमें पता है उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं. बट राइट नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4s. यस ऑर्बिट में ओनली दो ही एक ही ऑर्बिट रहते, एक दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं. सो 2 into 0 plus 1 that is equals to 1. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1. वन ही ऑर्बिट रहता है और ml इज इक्वल्स टू क्या रहता है? 0 रहता है. ओके, सो व्हेन दिस वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू yes 0. नाउ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू 1. देखो टोटल 4 सबशेल्स है. Total 4 subshells are present. Okay, total 4 subshells are present. That's why 4 subshells we will have to show. Then next is P. बराबर है? P. P के आगे क्या आता है? 4 आता है because the subshell का representation है. Okay, principal quantum number आगे आता है. Now next twice L plus 1. 2 multiplied by 1 plus 1 that is equals to 3. इसका मीनिंग ये है कि P ऑर्बिटल में, देखो आप सारे इसमें चेक करो, P ऑर्बिटल में P सबशेल में 3 ही ऑर्बिट रहते. देखो आप चेक करो, इसके लिए भी चेक करो, 3 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. P में देखो मैक्सिमम 3 ही ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. बराबर है? तो P सबशेल विल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिट्स और 3 ऑर्बिट्स में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 6 रहेंगे. ओके, सो हियर वैल्यू ऑफ ML इज इक्वल्स टू -1, वैल्यू ऑफ ML इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ ML इज इक्वल्स टू +1. समझ में आया? सो दिस इज व्हेन L इज इक्वल्स टू 1. व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 जब है, L इज इक्वल्स टू 1. नाउ व्हेन L इज इक्वल्स टू 2. व्हेन L इज इक्वल्स टू 2, यस, SPD बराबर है D एंड 4D बराबर है. 4D से लिखेंगे. समझ में आया ना सब लोगों को? ये 4 कैसे आता है? तो इनके आगे ये डिजिट, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आता है उसके आगे. एंड yes, twice multiply by 2 plus 1, that is twice L plus 1. Okay, 4, that is equals to 5. Total 5 orbits will be there. Total 5 orbits will be there. Total 5 orbits will be there. And 5 orbits अगर है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. So where ML is equals to, okay, where ML is equals to, yes, कहाँ से? Yes, क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा.
ml is equals to yes -1, ml is equals to yes 0, ml is equals to plus plus 1. Okay, ml is equals to plus 2. In this way, there will be total 5 values of the magnetic quantum number. Magnetic quantum numbers की जो वैल्यू रहेगी, okay, वो क्या रहेगी? 5 रहेगी. Okay, for the subshell, for this subshell, okay. And the last one, okay, and the last one is when the value of L is equals to, when the value of L is equals to 3. जब वैल्यू L की कितनी रहेगी? L is equals to 3. So L is the L is equals to 3. It is a subshell. Okay. S, P, D, and F. Okay. F, and here in front of that 4F will be there. Okay. 4F will be there. So twice multiply by principal quantum L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है. Okay. 3 plus 1. So 3 into 2, 6 plus 1, that is 7. बराबर है ना? Okay. Yes. So equal to 7, and here the values of values of ml will be 7 वैल्यूज आएंगे, यानी एक की वैल्यू -3 आएगी, ml की वैल्यू -2 आएगी, ml की वैल्यू -1 आएगी, ml की वैल्यू 0 आएगी, ml की वैल्यू +1 आएगी, ml की जो वैल्यू है +2 आएगी, और ml की वैल्यू +3 आएगी. In this way, these are the values of the magnetic quantum numbers. Okay, so in this way we have to represent. In this way we have to represent the, and we have represented for first 4 shell. फर्स्ट 4 शेल के लिए रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने. आप देख सकते हो के शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1. हाउ मेनी टोटल ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट? ओनली 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट. आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट, ओनली 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट, ओनली 1 ऑर्बिट इज प्रेजेंट. देखो फाइनल जो ऑर्बिट है, देखो यहाँ पे 1 and 1 क्रॉस चेक करो. देखो मैं सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ. देन L शेल में, ओके, लुक एट दी L शेल. L शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2. टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं? 4 ऑर्बिट्स. टोटल 4 ऑर्बिट्स से अभी उस 4 ऑर्बिट्स में से देखो अभी कैसे समझना है आप लोगों को. 4 ऑर्बिट्स में से हमेशा यस ऑर्बिट के यस जो सबशेल है, यस सबशेल में हमेशा एक ही ऑर्बिट रहता है. यस सबशेल में हमेशा एक ही ऑर्बिट रहता है. देख लो आप सारे इसके, देखो यस सबशेल में एक ही ऑर्बिट रहेगा. पी सबशेल में कितने ऑर्बिट्स रहेंगे? 3 ऑर्बिट्स रहेंगे. 1 + 3 कितने हो गए टोटल ऑर्बिट्स? 4 ऑर्बिट्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. बराबर है ना? क्लियर कट, 4 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ऑर्बिट्स है और उन ऑर्बिट्स का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन. देखो यस में 1 ऑर्बिट रहेगा, पी में 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट रहेंगे, डी में 5 ऑर्बिट्स रहेंगे टोटल. ओके, एफ में टोटल 7 ऑर्बिट्स रहेंगे. ओके, so in this way m, देखो m शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3. ओके, 3 इसका मीनिंग है उसमें 3 सबशेल्स है. 3 सबशेल्स कौन से हैं? L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2, and these subshells are represented by S, PD, 3S, 3P and 3D. yes सबशेल के लिए आप देख सकते हो. ओके, सो yes सबशेल के लिए आप देख सकते हो हमेशा एक ही ऑर्बिट रहता है. yes सबशेल के लिए हमेशा एक ही ऑर्बिट रहता है. P सबशेल के लिए हमेशा 3 ऑर्बिट्स रहते हैं. ओके, और डी सबशेल के लिए हमेशा 5 ऑर्बिट्स रहते हैं. ओके, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9 है. यहाँ पे 9 टोटल ऑर्बिट्स है क्या? 9 बराबर है ना? टोटल 9 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. टोटल 9 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. So first yes subshell is consist of 1 orbit, P subshell will consist of 3 orbits, and D subshell consists of total 5 orbits. Okay, total 5 orbits, and every one orbit is consist of only 2 electrons. Okay, 2 ही electrons रह सकते हैं maximum. Okay, so in this way, then next is N shell. N shell में principal quantum number is 4. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज 16. कितने ऑर्बिट्स है? 16 ऑर्बिट्स. आप देख सकते हो यहाँ पे यस सबशेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 ऑर्बिट हमेशा यस सबशेल में. P subshell will always consist 3 orbits. D subshell will consist always 5 orbits,
and F subshell will always consist 7 orbits. So 7 plus 5u 12, 12 plus 4, 12 plus this 3, 15 and 1 is 16. है total 16 orbits. Okay, total 16 orbits. So in this way you can correlate. आप correlate कर सकते हो. Okay, you can correlate. Okay, in this way you can correlate. आप बोल सकते हो यहाँ पे 1 yes है. Okay, 1 yes. Okay, maximum 2 electrons will be occupied. कितने electrons will be occupied? Maximum electrons अगर देखोगे इसमें maximum 2 आएंगे. Okay, यहाँ पे देखो 1 orbit है, 3 orbit है and 1 orbit and 3 orbit, total 4 orbits. Yes, total 4 orbits are present. and कितने maximum electron आ सकते हैं बताओ इसमें 4 orbits है तो maximum. yes yes कितने electrons? ये दोनों को मिला के. okay, इन दोनों को मिला के total 8 electrons will be there. okay, चाहे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, total 8 electrons will be there. total 8 electrons will be there. By okay, total 8 electrons will be occupied maximum in the L shell. Okay, L shell में, M shell में, M shell में, M shell में 1 orbit 1 plus 3 plus 5 total 9. टोटल कितने हो जाएंगे? 18. बराबर है ना? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. एंड हियर इट इज 1 plus 3 plus 5 plus 9. हियर इट विल बी 32. बराबर है ना? 32 ऐसे हो जाएंगे. सो वन ऑर्बिट विल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. so ये that is what the description actually I wanted to tell, because ये बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है कि why it is 2 written, okay, why this 1s is written. okay, this is written based on the principal quantum number. okay, principal quantum number के हिसाब से आगे principal quantum number रहेगा और उस शेल का रिप्रेजेंटेशन रहेगा. okay, उस शेल का रिप्रेजेंटेशन रहेगा. एस पी डी एफ. समझ में आया सब लोगों को? okay, how we have understood this. so based on this एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो 4.9 में है. अब तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, यस. so look at the problem number 4.9. okay, problem number 4.9. okay, so how many orbitals make n shell? how many orbitals make n shell? n shell में कितने yes, how many orbitals make n shell? n shell में कितने orbitals आएंगे? what is the subshell wise distribution of the orbitals in n shell? okay, तो क्या है क्वेश्चन? समझ में आया सब लोगों को? आप ओरली आंसर दे सकते हो डायरेक्टली. n shell. okay, so n shell में कितने कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? n स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है? 4 होता है. डायरेक्टली 16 ओरली बोल सकते हो आप डायरेक्टली इसको. ओके, सो टोटल 16 ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट. ओके, और सबशेल कितने रहेंगे? सबशेल कितने रहेंगे? डायरेक्टली 4. बराबर है, सबशेल विल बी इक्वल्स टू 4 ओनली. और क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सो वेरी सिंपल. सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है. ओके, एन शेल के लिए 4s 4p 4d एंड 4f. अभी आप लोगों को डायरेक्टली पता है 1 है. ओके, p में कितने हैं मैक्सिमम ऑर्बिट्स? ऑर्बिट्स कितने हैं? ओके, डायरेक्टली 3. d में कितने हैं? 5. f में कितने हैं? 7. ओरली बोल सकते हो आप डायरेक्टली. बराबर है, ओरली बोल सकते हो. यस में हमेशा 1 ही रहेगा ऑर्बिट. ओके, यस में जो ऑर्बिट्स है, दिस इज द ऑर्बिट्स एक्चुअली. ओके, ऑर्बिटल्स लिख देते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स. सो 4s में 1 ऑर्बिटल रहेंगे, 4p में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 4d में 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 4f में 7 ऑर्बिटल्स. इन दिस वे, ओके, इन दिस वे the number of orbitals will be in increasing order. okay, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे. समझ में आया ना? ओरली आप आंसर दे सकते हो. so simple. now the next is we have to understand the concept about the shapes of atomic orbitals. okay, अभी ये orbitals तो देख लिया हम लोगों ने, orbitals बराबर है, s p d f orbital suppose, but what is the shape of that orbitals that we study. okay, वो देखते हैं हम लोग. yes, now look at the this topic. okay, ये वाला देखो आप लोग. shapes of atomic orbitals. I hope it is visible. shapes of atomic orbitals दिखाई दे रहे? shapes of atomic orbitals. okay,
So this is very important. Now shapes of atomic orbitals. Okay, इसका shape कैसे होता है? So what are the different orbitals we have seen? Okay, so सबशेल में देखा है हमने S देखा हुआ है, P देखा हुआ है, okay, D देखा हुआ है और F देखा हुआ है, बराबर है? S, P, D, F. These are the subshell. Okay, these are the subshells and these इस subshells में भी orbitals है. Okay, इस subshells में भी orbitals है. So that we have to understand. Okay, that we have to understand. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे दैट the probability, okay, I have already mentioned, okay, this psi square, बराबर है ना? psi square क्या होता है? This psi square, this gives us the probability, this wave function, बराबर है ना? psi क्या है? wave function है, and this gives us the probability, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the probability of finding an electron at a given point in an atom in proportional to square of the wave function. मैंने आपको कल सैटरडे को बताया था, the probability is directly proportional to psi square, ऐसे ही लिखा था ना, बराबर है ना? So probability, I had written probability is this directly proportional to the psi square, probability of finding the electron. So this is based on the Max Born. This is based on Max Born. Okay, Max Born psi square at a point in an atom, and it is called as the probability density of the electron. Okay, probability density of the electron. And now look at the figure 4.1. Okay, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो? Okay, figure 4.7. Look at figure 4.7. 4.7 shows the density of 1s and 2s. What is this 1s and 2s? अभी आपने देखा 1s and 2s is what? These are the subshell. Okay, these are the subshell. 1s क्या है? किस शेल के लिए आएगा? फर्स्ट शेल के लिए, बराबर है? 1s किस शेल के लिए? के शेल के लिए आएगा, और 2s किस शेल के लिए आया? यल शेल के लिए. अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है. ओके, सो नाउ दैट वी विल सी. ओके, आप देख सकते हो. लुक हियर, दिस इज व्हाट दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट दिखाई दे रहा है सब लोगों को? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट. So this is probability density plot. Look at for 1s and look at for 2s. What is the difference you are observing? 1s में देखो ये probability density कैसे आ रहा है 1s में, ओके, और 2s में देखो कैसे दिखाई दे रहा है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे जैसे वो 1s 2s 3s 4s हो जाएगा, लुक एट दी साइज. साइज कैसे दिखाई दे रहा है उसका? यस, उसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है? लुक एट दिस साइज. साइज इज इंक्रीजिंग. ओके, साइज ऑफ दैट ऑर्बिट यू कैन से, okay, size of that subshell you can say it is increasing manner. Okay, it is increasing manner. So this is what the description. Okay, so the probability density of this diagram 1s and 2s atomic orbitals. So these diagrams appears like a cloud, बराबर है ना? वो cloud के जैसा दिखाई देता है. Okay, it appears like a cloud, and the electrons cloud of 2s orbital shows one node. Okay, एक ही node दिखाई देगा वहां पे, which is a region which nearly zero probability density and display the change of sign for its corresponding wave function. Okay, so just you have to remember this thing कि आपको इतना ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेल के लिए यस ऑर्बिटल अगर देखेंगे, यस सब शेल अगर देखेंगे हम लोग, तो उसका साइज इंक्रीज होते जाएगा. बस इतना याद रखो आप लोग. ओके, दिस विल इंक्रीज. So this is for the this subshell. Okay, this is for the subshell. So boundary surface diagram. Okay, the boundary surface diagram आप देख सकते हो, boundary surface diagram. So this boundary surface diagram, okay, of atomic 1s and 2s which are spherical. कैसे दिखाई दे रहा है? कैसे है इसका शेप? बाउंड्री सरफेस स्पेरिकल. ये याद रखना है, क्या है? स्पेरिकल इन शेप. ओके, बाउंड्री क्या है इसकी? स्पेरिकल शेप है. CS ऑर्बिटल की बाउंड्री क्या है? स्पेरिकल है. सो अ बाउंड्री सरफेस इज ड्रॉन इन स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल सच दैट द वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, एंड इट इज कांस्टेंट and enclosed a region where the probability of finding the electron typically more than 90% है. Such boundary surface diagram is a good representation of the shape of orbital. So what is the boundary or the representation of s orbital? s orbital के लिए क्या है? Spherical है. s orbital के लिए क्या है? Spherical है. Okay, so this is the boundary representation. Okay,
स्पेरिकल है। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम रहने दो फिलहाल 4.10, बिकॉज आई हैव टू फोकस ओवर दिस डायग्राम। ये डायग्राम में यहाँ पे अभी अगर ड्रॉ करता तो आपको नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने हेल्प लिया टेक्स्ट बुक का, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो ये यस शेल के लिए क्या है, उसका शेप क्या है, स्पेरिकल शेप है। शेप क्या है, स्पेरिकल है यस के लिए। जैसे ही हम लोग पी ऑर्बिट में आ जाते हैं, पी सबशेल में आ जाते हैं, देखो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? दिस इज द वैल्यू फॉर 2px, 2pz, 2py एंड 2pz, बराबर है। 2px के लिए देखो, 2py के लिए देखो, 2pz के लिए देखो। अभी देखो ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ बोर्ड से समझाता हूँ। चलो यहाँ पे देखो सब लोग अभी। ओके, सो हियर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। दिखाई दे रहा है सब लोगों को व्हाइट स्क्रीन? ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस में राइट साइड में दिखा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये पॉजिटिव राइट साइड में है। ओके, ये पॉजिटिव राइट साइड में है, और ये निगेटिव किस साइड में रहेगा, इस साइड में ये निगेटिव रहेगा, बराबर है ना सब लोगों को? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस एज अ वाई, दिस एज अ जेड एक्सिस सपोज, बराबर, दिस एज अ जेड एक्सिस। तो चलो पॉजिटिव जेड मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया, समझ में आ रहा है सब लोगों को, दिखाई दे रहा है? तो निगेटिव कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है सब लोगों को? यक्स अगर ये पॉजिटिव में कंसीडर कर रहा हूँ जहां पे मैंने लिखा, तो उसके अपोजिट वाला यक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन। ओके, तो जेड वाला सिर्फ जो जेड लिखा है वो पॉजिटिव है, उसके नीचे जो है वो जेड सपोज निगेटिव में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, इसको ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया ऐसे वाई एक्सिस। चलो ये वाई एक्सिस फेसिंग फेसिंग एट यूर साइड, फेसिंग एट यूर साइड, बराबर है, आपके साइड में फेस कर रहा है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? 3 डायमेंशन डायग्राम है ये। क्या है? 3 डायमेंशन डायग्राम है। एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट साइड, जेड एक्सिस टुवर्ड्स सपोज अपवर्ड, एंड वाई एक्सिस इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, यानी आपके तरफ वो फेस हो रहा है वाई एक्सिस का। ओके, तो अगर मुझे कोई भी चीज एक्सप्लेन करना है कि यक्स वाई में है, ओके, यक्स वाई यानी पॉजिटिव एक्स एंड वाई में, तो मुझे वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल रिप्रेजेंट इट विथ हियर, बराबर है ना? जो एक्स एक्सिस में है पॉजिटिव और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू बराबर है, यहाँ पे लिखूंगा। और जस्ट उसके अपोजिट अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके अपोजिट शो करूंगा मैं, बराबर है, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस जो है उसके बीच में, बराबर है। सो इन द सेम रेस्पेक्ट, इन द सेम वे, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलो ये देखो 2px, दिस इज व्हाट, 2px, ये वाला बहुत ही सिंपल है। 2px यानी ये जो ऑर्बिट से इसका जो शेप है, बाउंड्री सरफेस है। ओके, सो हियर बाउंड्री सरफेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो लुक एट द बाउंड्री सरफेस हियर, जा रही है तो ओके, सो लुक एट द बाउंड्री सरफेस हियर। ये देखो यक्स साइड में उसके पॉजिटिव और निगेटिव यक्स साइड में आया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? व्हेन इट इज 2px, ओके, व्हेन इट इज 2px, आप लोग जूम भी कर सकते हो आपकी स्क्रीन। ओके, सो 2px, ओके 2px आप देख सकते हो। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर दिस p subshell, okay, is like this, okay, and the display the boundary surface diagram with the nucleus being at the origin। nucleus कहाँ पे है, origin में। nucleus कहाँ पे, origin में है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस का। ओके, फॉर 2p ऑर्बिटल, फॉर 2p ऑर्बिटल आपको पता है n की वैल्यू क्या रहती है, 2 रहती है। ओके, n की वैल्यू क्या रहती है, 2 रहती है। एंड व्हेन l इज इक्वल टू 1, इट कैन बी सीन ईच p ऑर्बिटल हैज अ 2 लोब्स। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ओके, यू आर एबल टू व्यू 2 लोब्स। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो 2 लोब्स, and it can be seen that each p orbital has 2 lobes on the 2 sides of the nodal point। nodal point कौन सा है, intersection of all these axes is the nodal point। okay, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 2px तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक एक पॉजिटिव में आएगा, ओके, एक शेप पॉजिटिव में आएगा, और जो दूसरा है वो कहाँ पे आएगा, उसके अपोजिट साइड में आएगा। सेम फॉर वाई, वाई एक्सिस के लिए देखो, एक वाई साइड में आया, एक पॉजिटिव साइड में, दूसरा कहाँ पे आया, निगेटिव साइड में। सेम जेड के लिए देखो, जेड एक्सिस के लिए, ये पॉजिटिव इस साइड में आया एक लोब, और दूसरा लोब कहाँ पे आया, नीचे आया। दिखाई दिया सब लोगों को? म्यूट कर लो वॉइस, म्यूट कर लो सब लोग वॉइस। समझ में आया सब लोगों को? द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स,
the shape of these orbitals. Okay, so the size and the energy is just like a dumbbell shape. किसका है shape ये वाला? It is looking like a dumbbell shape. म्यूट कर लो, वॉइस म्यूट कर लो सब लोग, वॉइस म्यूट करो. डम्बेल शेप है, उसका शेप क्या है ये देखो, डम्बेल शेप दिखाई दिया ना सब लोगों को, इसका शेप क्या है? डम्बेल शेप है. So what is the size and shape of s orbital? S orbital का शेप क्या है? स्फेरिकल है. p ऑर्बिटल का शेप क्या है? डम्बेल शेप है. p ऑर्बिटल का शेप क्या है? डम्बेल शेप. इट इज फॉर्मिंग द टू नोड्स. ओके, so their orientation in space are however different. The lobes of these three 2p orbitals are along x, y and z axis. समझ में आया सब लोगों को? x, y and z axis के along है. Okay, x, y and z axis के along है. Okay, so p subshell contains how many orbitals? 3 orbitals. बराबर है ना? 3 orbitals consist. Okay, 3 orbitals होते हैं, आप लोगों को पता है. Okay. So the size and energy of the orbitals in p subshell increases with the increase in a principal quantum number. Principal quantum number जैसे बढ़ेगा, okay, for L shell के, for K shell के लिए, for different shell के लिए, जैसे जैसे shell बढ़ते जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ना यानी n बढ़ना. ओके, n जैसे जैसे बढ़ता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है. ओके, सो वैसे वैसे उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा. ओके, सो नाउ दिस इज द शेप ऑफ 3D ऑर्बिटल्स. आप देख सकते हो d ऑर्बिटल्स. ओके, d ऑर्बिटल्स और d सबशेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? हमने अभी जस्ट देखा है कितने ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिट्स होते हैं? d सबशेल विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 ऑर्बिटल्स. बराबर है ना? d सबशेल में कितने ऑर्बिट होते हैं? टोटल 5 ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, तो देखो उन 5 ऑर्बिट्स का जो शेप है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, वो दिखाया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब लोगों को. ओके, सो वेरी फर्स्ट जो पहला वाला है, ओके, ये जो पहला वाला है वो किसके लिए है? डी एक्स वाई के लिए. आप देख सकते हो एक्स और वाई एक्सिस में, ओके, उसके बीच में आएगा. ओके, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आएगा, जैसे मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया थोड़ी देर पहले. ओके, ये वाला जो कंसेप्ट, ओके, वाई और एक्स एक्सिस के बीच में ऐसे आएगा. ओके, ऐसे आएगा. सो आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम. ओके, इन दिस डायग्राम आप ऑब्जर्व कर सकते हो डी एक्स वाई. देन नेक्स्ट इज, ये देखो डी एक्स वाई. देन नेक्स्ट इज डी एक्स जेड. देन नेक्स्ट इज डी वाई जेड एंड नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड हियर इट इज द डी जेड स्क्वायर. ओके, दीज आर दी 5 अरेंजमेंट्स ऑफ दी ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स. समझ में? ये 5 उसके ऑर्बिटल अरेंजमेंट है, आप लोग देख सकते हो. ओके, हाउ दे आर अरेंज्ड. ओके, दिस इज डी एक्स वाई. ओके, ये देखो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आया है. ओके, उसके अपोजिट साइड में ये आया है. ओके, और उसका निगेटिव अगर एक्स एक्सिस देखोगे तो ये हो जाएगा, और निगेटिव वाई एक्सिस बोलेगा तो ये हो जाएगा. इन दिस वे दिस विल बी द अरेंजमेंट. ओके, दिस विल बी द अरेंजमेंट. ओके, so arrangement for, so there are 5 orbitals associated with the d subshell and that are designated. Okay, उनका designation देखो dxy, dyz and dxz and dx square y square and dz square. Okay, और उनका shape आप देख सकते हो. Okay, the shape of this. So in spite of the difference in their shape, the 5d orbitals are equivalent in the energy. यानी वो दिखाई दे रहा है उनका shape अलग अलग है, but if you look at their energy, वो energy क्या है? Energy is equivalent. Energy क्या है? Equivalent है सब में. Okay, so the shape of 4d 5d 6d orbitals will be similar as that of these 3d orbitals, but their respective size, उसका जो size है, okay, size और उसकी जो energy है वो क्या हो जाती है? Increase हो जाती है, and they are said to be more diffused. Okay, they are said to be more diffused. बस यही मुझे साइज और शेप दिखाना था इसके लिए, बिकॉज ये मैं ड्रॉ करता कितना भी बोर्ड के ऊपर तो आई थिंक ये आपको नहीं समझ में आता, बट राइट नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके, ये वाला एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाला वाई एक्सिस है, और एक्स वाई के बीच में आप देखो वो आया हुआ है. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड हियर इट इज वाई एंड एग्जैक्टली इट इज अलाइंड विथ इट्स एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस से अलाइंड है. ओके, बट जब आप ये देखते हो, ओके, ये देखो डी एक्स वाई, देखो तो ये बीच में आया है, बीच में आया है. देखो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आया हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
उसके बीच में देखो ये वाला आया हुआ है। ओके, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, उसके बीच में देखो ये वाला आया हुआ है। ओके, और इसके बीच में देखो ये वाला आया हुआ है। ओके, इन दिस वे एक बार डायग्राम देखो आप लोगों को, ये इनका अरेंजमेंट, ओके, इनका अरेंजमेंट कैसे है वो समझ में आएगा आप लोगों को। एंड जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा, उनका साइज, क्या बोला मैंने, उनका, उसका साइज, ओके, साइज एंड देयर एनर्जीज, ये क्या हो जाएंगे, दोनों भी पैरामीटर्स इंक्रीज होते जाएंगे। समझ में आया सब लोगों को? सो दिस इज अबाउट द शेप एंड द साइज ऑफ दिस एसपीडी ऑर्बिटल्स। ओके, एसपीडी ऑर्बिटल्स ही आप लोगों को, एस ऑर्बिटल का नहीं है। सो